The residents of Vashi's B-Type Owners Association, who previously lived in old houses, have been allotted new houses with increased area under the Permanent Alternate Accommodation Agreement. The agreement was finalized during the annual general meeting on July 21. Nalin Sharma, partner of the Gateway and Sai Developers, built the new houses for the citizens living in B-type apartments in Vashi, as the existing houses were deemed inadequate due to the growing number of families. Additionally, considering the issues faced by residents due to dilapidated CIDCO buildings, Sharma established a new Seaview Cooperative Housing Society at the site of the erstwhile B-Type Owners Association, Sector 6, Plot Number 3, Vashi. The Permanent Alternate Accommodation Agreement is a crucial guideline for construction developers under Maharera laws, and it is mandatory for developers to follow it. In accordance with this, the annual general meeting of Seaview Cooperative Housing Society was held on July 21, where Permanent Alternate Accommodation Agreement was allocated. The agreement outlines all-inclusive aspects, including possession of the house, timelines, and rent payment to beneficiaries until the house is built. Nalin Sharma stated, after CIDCO came into existence, citizens living in B-Type Owners Association in Vashi Sector 6 could not enjoy the benefits they desired due to the limited capacity of the earlier houses. However, we will ensure their benefits through Permanent Alternate Accommodation Agreement, and members will be mentioned in the Permanent Alternative Accommodation Agreement. Sharma added that while providing new extended houses in place of old ones, the floor location and basic facilities will be allocated as per government rules. अभी ये जो प्रोजेक्ट है हमने 2023 मई में चालू किया था और इसमें टेनेंट का एक बिल्डिंग है और अपना सेल के लिए 2 बिल्डिंग्स हैं, टोटली 288 टेनेंट्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेनेंट का बिल्डिंग जो है वो हम गणपति 25 दैट इज अराउंड अबाउट सितंबर 25 में हैंड ओवर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आगे पीछे कुछ तकलीफ आई तो 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है, पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको हम 25 तक दें। और ये पहली ऐसी सोसाइटी है जिसमें माने पहला सोसाइटी बोलो या कमिटी बोलो, वो लोग इतने कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ में, इतने कोऑपरेट किया है कि वो कमिटी की वजह से, उनकी कमिटी की स्ट्रेंथ की वजह से आज जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है या जो लोगों ने जो खाली किया है, फिर आज जो हम लोग PEEE लोगों को दे रहे हैं, वो सिर्फ इस कमिटी और हम लोग का जो कोऑपरेशन के वजह से ये सब पॉसिबल है। तो नवी मुंबई में PEEE देना 6 महीने के अंदर पहले टाइम हम लोगों ने दिया है और ये अंडरवाइज कर देना चाहिए कि सबको देना ही है 6 महीने के अंदर, कारण लोगों का हक लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारे ये और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में तो हमारी कंपनी साइड डेवलपर्स और गेटवे है, वो तो देयर इज नो क्वेश्चंस, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। Seaview Cooperative Housing Society, plot number 3, Sector 6, Vashi, comprises 288 units, and a permanent alternative housing agreement has been allotted in the annual general meeting. This is the first instance in Navi Mumbai where members have been allotted permanent alternate accommodation agreement within 6 months as per the agreement. However, Abhishek Sharma, partner of the Gateway, has delivered 100% on his promises so far. मेट्रिकॉन रियल्टी का ये जो प्रोजेक्ट है गेटवे, पहले ये B-Type अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन था। जब भी हमने ये प्लॉट में एंट्री की, जब भी हमने ये प्लॉट लिया बनाने को डेवलपमेंट, तभी ग्राउंड प्लस 2 की 18 बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, काफ़ी खराब हालत थी उसमें। और ये बिल्डिंग्स को लेके आज जो हमने 1 साल 1.5 साल में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं साइट पे, तो इतने स्पीड से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और जैसे कि ये प्लॉट का एक रूप
बदल दिया है। इसमें जो हमारी रीसेल की बिल्डिंग है, जो सेल की बिल्डिंग है और रिहैब की जो बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंगों का काम बहुत ही फास्ट स्पीड में चालू है। दोनों बिल्डिंगें काफ़ी प्रीमियम बन रही हैं। रिहैब बिल्डिंग में 288 फ्लैट्स हैं, वो 288 फ्लैट्स के साथ हमने एक्स्ट्रा अम्यूनिटीज़ वगैरह भी दी हैं। और जो सेल बिल्डिंग है गेटवे, तो वो गेटवे आज एक न्यू बॉम्बे में बेंचमार्क प्रोजेक्ट के जैसे माना जाता है। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें जो अम्यूनिटीज़ वगैरह दी हैं, इसकी समझो ऐसी तुलना न्यू बॉम्बे में अभी एक बार बन जाएंगी तो होना मुश्किल है। तो हमने हमारा पूरा मेहनत करके और एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो बोलते हैं उसको क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे आप जब भी हाईवे से न्यू बॉम्बे में एंटर करेंगे तो पहली बिल्डिंग जो आपको दिखेगी वो गेटवे दिखेगी। और हम न्यू बॉम्बे में रहते हैं, हम न्यू बॉम्बे में काम करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए कि लोग जब देखें तो बोले कि अरे वो प्रोजेक्ट है गेटवे, उधर रुका हूँ मैं, उधर पहुंचा हूँ मैं। तो एक लैंडमार्क इसको हम बनाएंगे। इसका एलिवेशन भी वैसे लिया गया है, इसकी एम्यूनिटीज वगैरह भी वैसे ली गई है। और मेन हमने इसमें ध्यान रखा है कि ये जो हमारा रिहैब कंपोनेंट है, इसका पेपर वर्क एकदम क्लियर रखा जाए। और ये पी देने का उद्देश्य यही है कि नई न्यू बॉम्बे में काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि आज तक किधर भी पी का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जैसा आज हमने किया है। पी इनका अधिकार है, इनको देना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से हम और सोसाइटी साथ में बैठे और हमने बोला कि हम ये सब बाद में करने के बदले लॉटरी का ड्रॉ करके सबके फ्लैट्स अलॉट करके उनको उनका डॉक्यूमेंट हाथ में दे दे। आज आप बाहर जाके देखेंगे तो लोगों की खुशी जो है वो दिखती है, क्योंकि ठीक है डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बट आज हर इंडिविजुअल के हाथ में क्या है? तो आज ये पी के डिस्ट्रीब्यूशन से उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। और ये कॉन्फिडेंस इनको देना बहुत जरूरी है कि उन लोग अपना घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं और हमारे पे पूरा अंधा आंख बंद करके भरोसा करके लोग अपने घर छोड़ के गए हमारे हवाले करके। तो आज ये डॉक्यूमेंट से काफी कुछ लोगों को कंफर्ट आई है और काफी कुछ लोग खुश हुए हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने इतने जल्दी स्टेज पे किसी भी प्रोजेक्ट में किया है। Chairman Jitu Patel noted that while construction comes with promises, there is no guarantee of fulfillment. बहुत सारे बिल्डर्स लोग आए, हमको कमिटमेंट दिया था, लेकिन किसी ने भी एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया था। तो मैट्रिकॉन रियल्टी के जो पार्टनर है हमारे, उनके साथ जो बात हुई, उन्होंने आज तक जो भी कमिटमेंट दिया पूरा किया है। जो एमिनिटीज़ उन्होंने हमने मांगी थी वो सब पूरी दे रहे हैं हम लोग को। और जिस पेस में काम चालू है बिल्डिंग का, हमको लग रहा है कि 1 साल में वो हमको बिल्डिंग का पोजीशन भी दे देंगे। और आज हमने हमारा एजीएम था और हमने आज पी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें हम आज पी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक जो पहले बिल्डर है जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि 6 महीने के अंदर पी एग्जीक्यूट करके हम लोगों को आज पी दे रहे हैं। Secretary Sugandha Sheltkar and her committee members expressed satisfaction, stating that over 40% construction has been completed in 10 months, and members are relieved to receive their rightful houses soon. गेल्या वर्षभरात म्हणजे आज 10 महिने झाले आम्ही हँडओव्हर केलं आमच्या डेव्हलपरला आमच्या सोसायटी बिल्डिंग्स रूम। 10 महिन्यात ह्या लोकांनी आता एवढं काम केलेलं आहे। आम्हाला विश्वास आहे की अजून 2 वर्ष, जसं आता डेव्हलपर म्हणतायत की 2 वर्षात आम्ही तुम्हाला देतो, आम्हाला वाटतंय की सगळ्यांना आपली हक्काची घरं सांगितलेल्या वेळापूर्वीच देतील ते लोक।